Assalamu alaikum. Hello, everyone. As many of you already know, this is Farah Farhan. I'm a stay at home mom and a digital business owner. And throughout this journey, I have learned that growth doesn't happen overnight, it comes through consistency, learning, and sometimes failure. So today's topic is failure is a part of growth, and I'm truly happy because to discuss this topic with me, we have a very honorable and inspiring guest. So please join me in warmly welcome Lubna Sohail. Assalamu alaikum, Lubna ji. Walaikum assalam. Thank you for having me, Farah. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, मेरे पेज पे आई आप। जी लुबना जी, तो सबसे पहले आप अपने और मेरे फॉलोअर्स को अपना इंट्रोडक्शन बताइए और ये बताएं कि ये बिजनेस आपने क्यों स्टार्ट किया। So, assalamu alaikum, good evening and morning, everyone, wherever you are watching from. I know Farah from this business, and that's what I am going to connect right now. Is a huge supporting community, and we are friends, and we are sisters from another mother, which are connected with each other and support each other. So, my name is Lubna Sohail, and I live in Windsor, Ontario, Canada, with my husband and three kids. I'm a teacher by profession, and I'm now a very proud digital entrepreneur. Now, being a teacher for so long, what brought me into this business? मैं इस business में क्यों आई? Like इतने साल मैंने 20 साल teaching की है कनाडा आके भी. तो what brought me was couple of years ago, and I never thought about it. ये मेरे जहन में भी कभी नहीं आया था. और जो हमारा आज का टॉपिक है लाइक फेलियर, क्योंकि लोग वर्ड फेल से बहुत डरते हैं. सो what brought me here के काम करते 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 आई एम ऑन माई हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नाउ. और उसमें एकदम मुझे चोट लगी, और चोट इतनी मामूली थी लेकिन वो इतनी बड़ी बन गई मेरे लिए कि वो हीलिंग डिफिकल्ट हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इट वाजंट दैट बैड, लेकिन वो फ्रैक्चर था एंड आई हैड टू सिट एट होम. नाउ बीइंग, आप सोचें कि 20 साल तक आप जॉब करते रहे हैं और अचानक आप जॉबलेस हो गए. आपकी एक सैलरी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, एंड सडनली व्हाट हिट्स यू वेरी हार्ड इट कि आप कितने इजीली रिप्लेसेबल थे. आप जो है अगर जो है वो कोई हेल्प भी लेते हैं कहीं से, तो इट्स फॉर सर्टेन डेज. इट्स नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर. व्हाट स्टेज विद यू इज दैट यू ओन. But I didn't own that job. That ownership of that income that was coming to me was controlled by someone else, not by me. So I was sitting home doing nothing, and that really frustrated me, and it also taught me something, that I need a plan B. Everyone, what happened to me, I don't want other it happened to other men or women out there. So I'm suggesting you should always have a plan B, because life is very unpredictable. You should be prepared for it, because when your job stops, your bill doesn't. They won't stop. So this is why I started it. And also my second big why was that I always wanted to travel. Like, I love my family that is living all over the world, and I always have a restriction of leaving in July and August. And I didn't want that. Sometime weather is like, if I have to go to Pakistan में इतनी गर्मी होती है, आप मार्च में फर्ज करें जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते अगर आप ऐसी जॉब करते हैं. बच्चे मेरे छोटे थे, आई शुड हैव गॉन, लेकिन मैं नहीं गई रिस्ट्रिक्शन. सो देयर वाज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम स्पेस. क्योंकि मेरी जॉब, अगर मैं चली जाती हूँ तो वो कहते हैं जी 10 डेज के बाद हम आपको सैलरी नहीं देंगे. लेकिन अगर मैं अपना बिजनेस कैरी करके लेके जाती हूँ, जो मेरा मैं ओन करती हूँ, दिस वाज माय बिगेस्ट अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट. ये अट्रैक्शन मार्केटिंग है. दिस अट्रैक्टेड मी दैट आई वांटेड टू लुक फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पेस. और ये मेरे लिए अट्रैक्शन थी कि मैं चली भी जाऊंगी तो मेरा काम स्टॉप नहीं होगा. आई कैन रन इट फ्रॉम एनीवेयर, आई विल बी सिटिंग एनीवेयर. तो दिस वाज माय बिगेस्ट व्हाई, एंड दिस इज व्हाट कीपिंग मी गोइंग ऑन टिल नाउ आफ्टर 2 years. बिल्कुल ठीक कहा आपने लुबना जी। लास्ट ईयर जैसे मैं भी पाकिस्तान गई थी ईद करने, तो जी जी. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हस्बैंड को पेड वेकेशंस नहीं मिली थी। या मैं 3 इयर्स के बाद गई थी, मुझे जाना भी ज़रूरी था, लेकिन उनको पेड नहीं थी।
लेकिन No. मैं अपना बिजनेस कैरी करके गई थी और मैंने उनको यही बता रही थी, मैंने कहा देखें दिस इज अ रेफरेंस। दिस इज, और मैं जब जाती रही हूँ ना फरा, तो आई यूज टू बुक द फ्लाइट्स लाइक 20 days अर्ली मैं करा लेती थी। बच्चे छोटे थे ना उस वक्त, इतना कंसर्न नहीं था, हाई स्कूल में नहीं पहुंचे थे। आई माई वर अनपेड वेकेशन, सो आई वुड बी लीविंग 20 days ऑफ पे। अगर 30 days की पे मुझे मिलती तो मुझे सिर्फ 10 days की मिली उसमें। बिल्कुल। सो दिस वॉज फॉर मी, दिस वॉज द बिगेस्ट अट्रैक्शन आई हैड इन दिस मॉडल। बिल्कुल जी, चलिए लिब्ना जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी जी। सो टुडे टॉपिक इज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड हियर इज द की पॉइंट्स। जी लिब्ना जी, तो फेलियर इज अ टीचर। फेलियर इज आई थिंक द बिगेस्ट टीचर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये देखें, फरा कि जब बच्चा चलना शुरू करता है, अब वो कितनी दफा गिरता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉपर तरीके से चलना शुरू करता है। लेकिन हमारे कल्चर में या हमारी सोच में, कल्चर तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि फेलियर हमें स्टॉप कर देगा। अगर अभी हम, बच्चा जो चल रहा है वो गिर गया तो उसके घुटने पे चोट लग जाएगी, तो इस तरह वो चलना ही नहीं सीखेगा, he will never walk. So every setback that shows what didn't work and why makes a part of the journey easier. Now ये वही है, मैं जैसे एग्जांपल दूंगी कि वो बच्चा अब फिगर आउट कर रहा है कि मैंने अपने आप को बैलेंस कैसे करना है। उसने गिव अप नहीं किया, वो फेल होके उसने ये नहीं किया कि मैं सारी उम्र बैठ के गुजार दूं, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। it it helps to clarify your goals. It gives you directions what to do next time if you fail first. It actually shifts your mindset. For example, if I'm giving you that toddler example who is walking, now that toddler is changing his approach. वो अपनी अप्रोच बदल रहा है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं ताकि मैं प्रॉपर तरीके से खड़े हो, मैं अपना बैलेंस ठीक करूं, मैं अपनी लेग की पोजीशन ठीक करूं, मैं वॉक करते हुए अपना फुट कैसे फ्लोर पे रखूं। यानी कि ये सारी चीजें जो है वो अब उसका माइंडसेट जो है फिर शिफ्ट कैसे हो रहा है, उसको पेशेंस सिखा रहा है। उसको पेशेंस कैसे सिखा रहा है, वो जहन में सोच रहा है ये एक दफा नहीं होगा, मैंने बार बार करना है। अब मैं एक दफा करूंगा, एक दफा उसने सोचा तो उसकी टांगें थोड़ी सी टिल्ट हो गई, वो गिर गया। नेक्स्ट टाइम उसने कहा नहीं मैंने टांगों को टिल्ट नहीं रखना, सीधा रखना, वो फिर गिर गया। उसने कहा मेरे पांव इस दफा ठीक नहीं थे। नेक्स्ट टाइम जब वो खड़ा हुआ तो उसने पांव सीधा रखा। इस तरह दिस इज ह्यूमिलिटी एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट व्हाट नेचर इज गिविंग यू। वो जो आपको दे रहे हैं उसको आप जब अडेप्ट करते रहेंगे चीजों को, अपना माइंडसेट शिफ्ट होता है जब तक आप क्लियर ना हो, वो फॉग रिमूव ना हो जाए। और अगर आप हैजर्ड करते रहेंगे तो आप खड़े होंगे। इसमें फर्क मैं दो चीजें बताऊंगी। एक वो टॉडलर भी हो सकता है जो उन एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं कर रहा, वो समझ ही नहीं रहा ये फेलियर है, वो ये समझ रहा है बस ये मैं जैसे कर लूं वैसे, वो ज्यादा वक्त लेगा। जो लोग अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लेते हैं और वो उन एक्सपीरियंसेस जो फेलियर के थ्रू उनकी जिंदगी में आते हैं उनको जब पेशेंटली लेके चलते हैं, उनसे लर्न करते हैं, तो वो गिव अप करने की बजाय वो अडेप्ट करते हैं उनको और वो जल्दी लर्न कर लेते हैं। लेकिन इट कम्स विद अ लॉट ऑफ, वो कहते हैं ना मैथ का क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस इज द की, practice is the mother that teaches. So it's the practice, but each time you are failing one way, you are trying the other way, you are failing second way, you are trying the third way. So I think this is very very important. मैं यहाँ पे The other, yes, बिल्कुल फरा, go ahead. मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी। अभी जैसे आपने जी टॉडलर की एग्जांपल ली, तो मेरी बेटी जो है वो 3 years ओल्ड है, जी ठीक है। जी। तो वो अभी जैसी बात है वो अपनी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से काम करती है। तो उसने जहाँ पे उसका हाथ नहीं जा रहा होता तो उसने क्या ट्रिक लगाई कि वो पहले तो वो फेल हो रही थी, मैं कुछ इस तरह उस तरह करके, उसने क्या ट्रिक लगाई, अब कोई भी पॉट या कोई भी पिलो या इस तरह करके वो रखती है, उसको डबल ट्रिपल करके जो भी उसकी रेंज में आता है उसको समझ में आता है कैसे करना है, और वो उसको ऊपर करके अपना काम कर लेती है। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने क्विक वो निकाल रही है। यस, और फरा आप ये देखें कि हम लोग एडल्ट है ना, हमें तकिए पे खड़ा होना नहीं आएगा, क्योंकि हम तकिए से, वो बच्चे नहीं करते। क्यों? वो जो फेलियर होता है ना उनका, वो इतने बारीकी से देख रहे होते हैं कि उन्होंने Exactly. पिलो पे अपने फुट को बैलेंस कैसे करना है, हम नहीं कर सकते। मैं मैं गिर तो जाऊंगी पिलो से। सरप्राइज होती हूँ कि यार ये यस, कैसे कर रही है।
यस, कैसे कर रही है। और जहां तक लोग, आप अपने आप को अगर कंपेयर कर रहे हैं ना, ये जो फेलियर होता है, मेरे मेरे ट्विन्स हैं बेटे, तो वन स्टार्टेड लर्निंग वेरी लाइक, उसने चलना बहुत जल्दी शुरू कर दिया, और एक ने चलना बहुत देर में शुरू किया। वो डरता था फेल होने से, वो गिरने से डरता था, वो दीवार पकड़ पकड़ के चलता रहता था। दूसरा 10 दफा गिरा, 11वीं दफा वो भाग पड़ा, यानी कि वो चल पड़ा। सो दे, फॉर मी इट्स अ ह्यूज कंपैरिजन, हाउ एवरीवन्स अप्रोच इज डिफरेंट। अगर आप फेलियर से डरेंगे ना, अगर आप गिरने से डरेंगे, तो फिर प्रोग्रेस मुश्किल हो जाती है। लाइक आवर फोर्थ पॉइंट इज दैट प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर। ये वही बात मैं कर रही हूँ कि वो जो मेरा एक बेटा है ना, जो दीवार पकड़ पकड़ के वो 2 साल चला ऐसे, क्यों? वो चाह रहा था लीनियर हो, मैं चलूं तो मैं गिरूं भी नहीं, मुझे चोट भी ना लगे, और जो है मैं बस सीधा ही चल पड़ूं। दैट्स नॉट लीनियर, दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज। वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो है कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी कुछ दिन होंगे कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा। वो जो है वो स्लो होंगे डेज, कुछ जो डेज हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कुछ लेस प्रोडक्टिव होंगे। तो इसी तरह करते करते जो है वो, और कोई भी, जैसे मैंने अभी कहा कि सक्सेस कभी भी फेलियर के बगैर नहीं होती। मैं टीचर रही हूँ सारी अपनी लाइफ, और मैं बच्चों को हमेशा यही कहती थी कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तो वो सही कैसे सीखेंगे? अब हम कहते हैं जी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, तो अगर ब्लैक नहीं होगा तो व्हाइट कैसे होगा? रेड, अगर हम कहते हैं रेड और ब्लू, अब जी रेड रेड अगर हम देखेंगे नहीं कलर, तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो ये चीजें जो है, फेलियर, उसको क्लैरिटी आती है, माइंड शिफ्ट सेट होता है। एंड नेक्स्ट इज के, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसमें है कि सक्सेस विदाउट फेलियर इज रेयर। जो मैंने अभी कहा कि वो हो नहीं सकता। सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करता है आपका अपना, इट इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ परफेक्शन। जो लोग परफेक्शन को परसू करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो। हमारे बिजनेस में अगर मैं यहाँ बैठ के इस वक्त सोचूं कि मैंने परफेक्टली एक, क्या कहते हैं वो, लर्न बाय हार्ट, जो रटा लगा के मैंने बोलना है, Exactly. दैट्स नॉट रियल मी। मैं इस वक्त जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैंने ये कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। अगर हम स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे, अगर हम वो नहीं होंगे जो हम असल में हैं, तो लोग हमसे कैसे कनेक्ट करेंगे? बिकॉज पीपल हु आर सिटिंग एट होम, और अट्रैक्ट, आप अट्रैक्शन मार्केटिंग में है, तो हाउ आर दे गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड इफ दे डोंट सी देमसेल्फ इन यू? अगर वो अपने आप को आप में नहीं देखेंगे, वो फेलियर्स नहीं देखेंगे, तो वो फिर कैसे आएंगे? वो कहेंगे हमसे तो ये परफेक्ट चीज नहीं होती। सो मेक मिस्टेक्स, फेल समटाइम, सो यू लर्न बेटर। क्योंकि आप परफेक्ट होके, परफेक्ट तो फिर 10 साल लग जाएंगे, और ये जो फेलियर के बाद ग्रोथ होती है, ये परफेक्शन से बेहतर होती है, इसीलिए बिकॉज दैट प्रोग्रेस स्टेज विद यू फॉर एवर। ये वही है, जो चीज फौरन मिल जाती है वो याद नहीं रहती, जो आप मेहनत करके लेके आते हैं वो बड़ी अच्छी तरह याद रहती है कि वो आपने कैसे ली। आपको घर में बैठे हुए कोई चीज ला के दे दे तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती, जो आप खुद जाके लेके आते हैं, आयल में जाके ढूंढते हैं, उसके लेबल्स पढ़ते हैं, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, एंड देन यू बाय इट। तो वो परफेक्शन तो वो है ना कि बनी बनाई चीज आपको मिल गई। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कुकिंग करते हैं या कोई न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं, तो वो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कभी, जैसे कोई मैं भी डिश ट्राई करूं तो वो फर्स्ट टाइम में परफेक्ट कभी भी नहीं बनती। उसको जब बिल्कुल। तक मैं 2 3 4 दफा नहीं ट्राई करूं, वो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, और उसके बाद जो रहता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो चीज अच्छे से हो जाती है कि यार अब इट्स गुड। और और इसमें ना फरा, मैं एक और चीज सिर्फ ऐड करूंगी कि बाज दफा ये होता है कि आप कुछ इंग्रेडिएंट देख के एक रेसिपी बनाते हैं, फर्स्ट टाइम वो परफेक्ट बन जाती है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं बनती, तो लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। फेलियर कोई जरूरी नहीं है पहली दफा ही हो, सेकंड टाइम एग्जैक्टली भी हो सकता एग्जैक्टली, है, कभी थर्ड भी हो टाइम भी। सकता है। बाद दफा लोग कहते हैं पहली दफा बनाई थी तो इतनी अच्छी बन गई, अब दूसरी दफा किया तो वो अच्छी नहीं बनी। नो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ। एक दफा आपने बनाई, आपने हर चीज को फॉलो किया, सेकंड टाइम आप में भी, अब आपकी टेस्ट शुरू हो गई है, यहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई कि अगर मैंने इतना सा ये गलत कर दिया तो ये हो जाएगा। सो इट्स नेवर अ परफेक्शन, इवन इफ यू आर सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम, यू आर स्टिल लर्निंग।
And the last growth one, meaningful. yeah, फेलियर मेक्स ग्रोथ मीनिंगफुल। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि गलतियां करें, गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। कोई भी परफेक्ट बाय बर्थ नहीं होता, कोई सब कुछ सीख के नहीं आता। अगर मैं 20 साल से भी टीचिंग कर रही हूँ, देर आर न्यू वेज ऑफ कमिंग फॉर टीचिंग। एआई ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, हम लोग जो है वो अभी भी लर्न कर रहे हैं। मैं आई एम एन एंथुजियास्टिक लर्नर, तो वो मुझे जो नई टेक्नोलॉजी आती है, बिकॉज आई हैव बीन इन टीचिंग, और जब हाई स्कूल और उनको आप पढ़ा रहे हो तो यू हैव टू कीप अप विद टेक्नोलॉजी। इतना कुछ आ गया है, एंड इन दिस मीनिंगफुल उसको बनाना चाहिए ताकि एवरीथिंग इज, द जर्नी फील्स मोर वैल्यूएबल व्हेन यू नो हाउ मच एफर्ट एंड लर्निंग इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि 2 दफा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करके और परफेक्ट हो जाऊं अलजबरा में, it's not meaningful. You have to practice enough to get there. And please do not compare yourself with other people. अपने आप को खुद से करें। हाँ, मैं ये जरूर करती हूँ कि कोई अगर सक्सेसफुल है और बड़ी तेजी से सक्सेसफुल है तो मैं उसको ऐसे नहीं लेती कि मैं देखो हाय अल्लाह ये कैसे हो गया। नो, लुक एट देयर जर्नी एंड लुक एट द एफर्ट दे पुट इन। अगर ऑनेस्टली अगर मैं देखूं, मेरा कोई गिला नहीं बनता। मैं एक चेकलिस्ट बनाई हुई है मैंने, देर आर 7 थिंग्स इन। अब वो मैं 7 थिंग्स को, जब भी मेरे जहन में ये बात आती है ना कि उफ मैंने अभी तक ये नहीं अचीव किया, तो मैं उसको चेकलिस्ट को देती हूँ, क्या मैंने वो सब कुछ किया है जो 7 चीजें थी? नहीं किया होता। सो यू कैन नॉट ब्लेम फेलियर for not progressing for you. So if this is a journey, that if you start with this kind of mindset कि आपने जो है इन गलतियों से सीखना है, अपने लिए एक चेकलिस्ट बनानी है, तो जब आप गलतियों से सीखते हैं ना तो आपको वैल्यू ज्यादा होती है उसकी। जैसे एक बच्चा, जब माँ बाप उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसको वो एहसास नहीं होता चीजों का कि इनकी वैल्यू क्या है। जब बच्चे खुद पैसे कमाने शुरू करते हैं ना और वो जाके चीज खरीदते हैं, चाहे लोशन की एक छोटी सी बोतल लें, उसकी वैल्यू होती है उनको, वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू होती है। वो जर्नी जो उन्होंने वो जिस जर्नी से हम एज ए पेरेंट गुजरे, फरा गुजर रही है, मैं हूँ, हम बाकी सब हैं, हम उस जर्नी से गुजरे गए, मेहनत की, ऑनलाइन की या ऑफलाइन की, पैसे कमाए, फिर वो बड़ी मुश्किल से कमाए और फिर जाके हमने खर्च किए, तो हमें एहसास है कि इस चीज को जाया नहीं करना, इस चीज को कैसे। बच्चों को नहीं होता, बट वंस ये जर्नी जब वैल्यूएबल उनके लिए तब होगी जब उस प्रोसेस से गुजरेंगे। वो भी काम करने जाएंगे, मुश्किल से पैसे कमाएंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि इसकी वैल्यू क्या है जो मैंने बाय किया, चाहे एक टिश्यू पेपर का डब्बा ही क्यों नहीं है। So this is what I'm going to tell you. Your effort and learning is required for journey ताकि वो worthwhile हो। बिल्कुल वर्थ वाइल हो, और मतलब डीमोटिवेट ना हो। जो सक्सेसफुल No. पीपल है उनसे लर्न करें, उनको मोटिवेशन बनाएं, देखें कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, कहाँ लैकिंग है, और उसको इन अ पॉजिटिव वे आप यूज करके बिल्कुल ग्रो कर सकते पॉजिटिव वे। और जब आप स्टार्ट करें तो, और ना या आप उसमें देर में भी हैं, जैसे मैंने कहा ना चेकलिस्ट बनाएं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, आप एक चेकलिस्ट बनाएं ना। इफ somebody is there for 5 years and I am there for like 5 months, I do not compare myself with that person। और फिर मैं देख रही हूँ कि उस 5 सालों में उस बंदे ने या उस बंदी ने कितनी मेहनत की है और किस तरह की मेहनत की है। सो अडेप्ट दीज विद द फेलियर्स एंड अडेप्ट विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। उसको अडेप्ट करें और ताकि वो जो है वो स्मूथ हो प्रोसेस आपके लिए इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव रहें, तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और वही है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, आपके यस, साथ वही चीज होती है। बिल्कुल वही होती है। पॉजिटिव फ्रेंड, थैंक यू सो मच लबना जी, आपने इतनी यू आर अच्छा वेरी इंसाइट वेलकम दिया। फॉर, थैंक यू और फॉर हैविंग मी। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को कुछ नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिली होंगी और वो मोटिवेट होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू आर और वेरी जो भी वेलकम। हमारे साथ ज्वाइन थे, मदीहा, फातिमा, कौसर, बजला, एवरीवन जो हमें ज्वाइन इस वक्त लाइव में है, थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच वाचिंग अस। या
चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी एक नए गेस्ट के साथ एक लाइव में मिलेंगे। टिल देन इंशाल्लाह अल्लाह फरा। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।